بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 27 جولائی ہے سال 2022۔ اسٹیبلشمنٹ نے امپورٹڈ حکومت اور نون لیگ کو کوڑا جواب دے دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اسمبلیاں تحلیل کرو۔ نواز شریف نے لندن سے عام پیغام پہنچا دیا ہے۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت دلانے کا یہ سارا منصوبہ تھا۔ نون لیگی صحافی بھی اب پھٹ پڑے ہیں، پہیا الٹا گھوم گیا ہے، بازی پلٹ گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کی کابینہ کے اندر کون کون سے وزراء ہوں گے؟ عمران خان نے آج بنی گالہ میں ایک لسٹ ان کے حوالے کی ہے۔ کچھ اور اپ ڈیٹس ہیں، ان پر ہم بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے چودھری پرویز الہی کی ایوان صدر کے اندر دھوم دھام سے تقریب حلف برداری ہوئی ہے، اس کے اندر فیصل تارڑ صاحب، صدیق جان صاحب، اسد اللہ خان صاحب اور بہت سارے ہمارے صحافی دوست وہ شریک ہوئے۔ میں بھی وہاں پر موجود تھا اور پچھلی ویڈیو کے اندر وہاں کے جو سین ہیں وہ آپ کو دکھا چکے ہیں۔ لیکن بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی وی نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ریاست پاکستان کا جو سربراہ کی حیثیت ہے آئینی طور پر وہ صدر پاکستان کو حاصل ہے، پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی تقریب حلف برداری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر یہ سارا عمل ہو رہا ہے۔ پی ٹی وی جو عوام کے ٹیکس کے پیسے پر پلنے والے چند ہاتھی وہاں پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ پھر صبح آج بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، اور وہاں پر عام چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو گئی۔ اور پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ کابینہ کے اندر جو اکثر نام ہے وہ پرانی جو پنجاب کی کابینہ ہے وہی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے بزدار صاحب کی جگہ پر اب چودھری پرویز الہی آ چکے ہیں۔ اب اس کابینہ کے اندر میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید، چودھری ظہیر الدین، ڈاکٹر یاسمین راشد، حافظ محمد ممتاز، سمیع اللہ چودھری، سردار آصف نقوی، حافظ عمار یاسر، ان کو بھی صوبائی وزیر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یاسر ہمایوں راجہ، تیمور خان بھٹی، مراد رات، محمد عبداللہ وڑائچ، محمد رضوان، ساجد احمد خان بھٹی، احسان الحق چودھری، خدیجہ عمر، ان کو بھی وزیر بنایا جا رہا ہے۔ اور کاف لیگ کے بھی چونکہ اس کے اندر 2-3 اراکین ہیں، تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ مشاورت کے بعد جو حتمی مشاورت ہوگی وہ کل لاہور کے اندر ہوگی۔ عمران خان صاحب لاہور جائیں گے۔ اب رانا ثناء اللہ کی بڑھ کے گورنر راج کے حوالے سے کیا گورنر راج جو ہے اس پوزیشن میں لگایا جا سکتا ہے، اس کے آئینی اور قانونی کیا معاملات ہیں وہ تو ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ اور اس وقت ایک تو جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ شروع کر دیا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو کسی بھی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور پھر جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر قاضی فائد عیسیٰ کا خط آنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو تقسیم ہے وہ مزید واضح ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں احسن بوڈ، وہ جلتی پر مزید تیل ڈال رہے ہیں۔ ایک پراکسی جو جنگ ہے وہ اداروں کے حوالے سے شروع ہو چکی ہے، لیکن جو نیوٹرل ہیں اب ان کے خلاف بھی ایک مہم کا آغاز ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری گیم ہوئی ہے ہمارے خلاف، اور یہ عمران خان کو 2/3 اکثریت کے ساتھ یا واضح اکثریت کے ساتھ واپس لانے کا ایک منصوبہ تھا، جس کے اندر فضل الرحمان زرداری، نواز شریف، یہ سب ٹریپ ہوئے ہیں، اور یہ شاید سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس وقت یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ امپورٹڈ حکومت نے آؤٹ آف دا وے جو اسٹیبلشمنٹ سے مدد طلب کی ہے وہ مدد دینے سے انکار کر دیا ہے، چونکہ نعرہ وہ پہلے ہی لگا چکے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ اور اب عمران خان نے بھی انہیں کہا ہے کہ آپ کی نیوٹریلٹی قوم کو نظر آنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ چیخ و پکار کی جو کیفیات ہے وہ بدل گئی ہیں۔ یہ طبقہ ملامتیہ سیاست میں ہو، صحافت میں ہو، وکالت میں ہو، تجارت میں ہو، جہاں بھی ہے یہ طبقہ ملامتیہ ایک کیفیت کا نام ہے جو میں آپ کے سامنے اکثر رکھتا ہوں۔ اب یہاں آپ کو بتاؤں تو یہ روزنامہ دنیا نے بھی خبر دی ہے اور جیو نیوز اور جنگ نے بھی یہ خبر دی ہے۔ طارق عزیز صاحب خبر دیتے ہیں کہ پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت کے خاتمے کے بعد نون لیگ نے مرکز میں حکومت سے علیحدگی پر غور شروع کر دیا ہے۔ پارٹی میں ہارڈ لائنر اس حق میں ہے کہ پنجاب میں مخالف حکومت ہونے پر
वफाक में ज्यादा अरसा इक्तदार सूदमंद नहीं होगा बल्कि सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित होगा, मरियम ग्रुप ने यह कहा है। लेकिन इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर जो जियो न्यूज की खबर है उसके मुताबिक कहा गया है कि नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर क़यादत से मरकज में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बात की है। नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत पार्टी के आला रहनुमाओं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं। अब ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि हुकूमत में मजीद रहना मसाइल को हल करने के बजाय मजीद मसाइल पेचीदा कर देगा, जबकि हुकूमत को तमाम रियासती इदारों से हकीकी हमायत हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन वो हासिल नहीं हुई। आसिफ जरदारी, फजल रहमान समेत PDM के रहनुमाओं ने अब तक हुकूमत छोड़ने के ख्याल की मुखालफत की, लेकिन परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसका इम्कान दिखाई दे रहा है और अब सारे कन्वेंस होंगे, असम्बलियां तहलील होंगी, शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफा देगा और घर जाएगा, और बिल आखिर जो है अगर घर नहीं जाएगा तो इसी तरह उसको उतार कर जो है ज़ाहिर है अवाम अपने तौर पर फेंकेगी। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो अंसार अब्बासी स्टोरी लेकर आए हैं, जो मैंने आपको बताया है कि इस वक्त नून लीग के हलकों के अंदर ये बड़ी हलचल है, अपने ही जाल के अंदर ये फंस गए हैं। ये जिस तरीके से न्यूट्रल के इन्होंने नारे लगाए, और ये मैं समझता हूं दाद देनी चाहिए, वो कौन था जिसने वो न्यूट्रल के नारे लगवाए, और अब ये बेचारे उस पर हमला भी नहीं कर सकते। जबरदस्त तरीके से अभी इदारों का उसी तरीके से इन सहाफियों ने, इन सियासतदानों ने, इन इम्पोर्टेड हुकूमत की जमातों ने दिफा करना चाहिए इनको। अब इनको ये खेल नहीं खेलने दिया जाएगा कि ये हमारे साथ ये हो गया, हाथ हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पर अंसार अब्बासी की जो स्टोरी है वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को मुताल्लिका हलकों से परेशान कुन इशारे मिलने लगे हैं। मैं जो बातें आपसे पिछले एक हफ्ते से कर रहा हूं वो आप तईद होगी और आप देख रहे हैं इसको। मुस्लिम लीग नून को मुताल्लिका हलकों से परेशान कुन इशारे मिलने लगे हैं। मुताल्लिका हलके कौन है? वही जिनको ये न्यूट्रल कहते रहे हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, इसलिए जमात अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी कर रही है, और ये इम्कानात भी मौजूद हैं कि शायद नून लीग एक बार फिर अपना पुराना वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है उसको जिंदा करने की कोशिश करे। मुतल्लिका हलकों से परेशान को इशारे मिलने के बाद जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सूरत हाल का जायजा लिया है और कुछ इदारों के हवाले से पार्टी की जानब से सख्त मौक़िफ़ की पॉलिसी अख्तियार करने पर गौर किया जा रहा है। अब दोबारा ये कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया है, गेम हो गई है। और ये इसके अलावा इस बात पर भी गौर हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अवाम और मीडिया के साथ अपना दोबारा राब्ता शुरू करें। मतलब ये है कि वो जलसों के अंदर तकरीरें कह रहे और मीडिया पर उनके इंटरव्यूज जो है वो नशर किए जाएं। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आज की जो ताज़ा तरीन ये अभी इंटरव्यू हुआ है थोड़ी देर पहले। आप देखिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब आवाम जो है इनके इस बयानिए को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान के साथ ये जो आवाम खड़ी हुई है, यकीनन इसने पूरा पहिया उल्टा घुमाया है, बाजी को उलट कर रख दिया है, जिसकी वजह से अब जावेद लतीफ जो है ये क्या कहता है। मरियम ग्रुप और शहबाज ग्रुप, इसकी लड़ाई अब अखीर हो चुकी है और ये एक रियलिटी है, अगरचे करप्शन पर इनका इत्तेफाक होता है। जावेद लतीफ कहता है कि मैं काबीना में कहता रहा हूं कि अगर फराग होगी, बुशरा बीबी और बनी गाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में है। अब ये बात जो देखिए ना, या तो आप कोई ऐसा मुकदमा लेकर आए, कोई ऐसा करप्शन का सबूत लेकर आए, यानी आप हुकूमत में आए हैं तो आप इस मुल्क के इस तरह मालक हो गए हैं कि जिस पर मुकदमा नहीं बनता, जिस पर कोई इल्जाम नहीं करप्शन का, आप उसको जेल में डालें, आपको ठंडी पहुंचे। आपकी करप्शन, चोरी डकैती और नोयत की थी और यहां पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। तो ये चूंकि असल इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से इमरान खान और इसके मुतल्लिका जो लोग हैं करीबी, उनको जेल में डालो, और वो जेल में नहीं डाला गया। अब ये सच उगल रहा है, सच उगल रहा है इनके इरादे कितने खतरनाक थे और ये पाकिस्तान पर क्यों जो है वो काबज हुए हैं। वो कहते हैं हमने कहा बुशरा बीबी और बनी गाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में है। फिर वो कहते हैं काबीना में ये भी कहता रहा हूं कि अगर बेगुनाह नवाज शरीफ की सजाएं खत्म नहीं करा सकते तो किस लिए हुकूमत में है। अब देखे ना जी, नवाज शरीफ बेगुनाह इसने करार दिया, अदालत कहती है गुनाहगार है, मुजरम है। तो भाई आपका कहना क्या माना रखता है? यानी मकसद ये है, मैं आपको मुसलसल कह रहा हूं कि जजेस जो ये बेंच है
चंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा करो, प्रेशराइज करो, ताकि नवाज शरीफ की जब अपीलें आए तो ये जजेस उसके अंदर ना बैठे और वो अपने पसंदीदा जो जजेस हैं वो बैठे और मामलात हल हों। और इस मामले पर इस वक्त इनकी पूरी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरपर्दा तौर पर डील की जाए, नवाज शरीफ वापस आए, एक मरतबा जेल में जाए, चंद दिनों के बाद वो निकले और यहाँ हीरो बनकर तकरीरें करे और मजलूम कार्ड खेला जाए। इसके जरिए इमरान खान का बेहतरीन मुकाबला हो सकता है। ये हाल पेश किया जा रहा है इस वक्त जो है वो नून लीग की तरफ से इदारों के सामने। पहले दिन से वो कहता है हम हुकूमत में आने के हक में नहीं थे, लेकिन वो कौन था जो आपको लेकर आया? वो कौन था जिसने आपको इतना एतमाद दिया? और आप आते ही गुल्लू भट्ट से 4 दर्जे ऊपर अता तारड़ और लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह मूंछों को ताव देकर अवाम पाकिस्तान पर इतना जुल्म किया। अब वो कहते हैं इमरान खान को लाडला और दूसरों को भारतीय समझा जाता है। यानी हमारे ऊपर इल्जामात लगे हैं, इमरान खान पर नहीं लगे। भाई इमरान के साथ तो अवाम खड़ी हुई है। हमारा हाल ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम किसके खिलाफ जत्थे लेकर जाएं। मसाइल के हल के लिए प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी कोई आपको कुछ भी ना कहे करप्शन पर, लीडर लेस एहतजाज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। यानी फिर हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, फिर खाना जंगी होगी। भाई आप क्या खाना जंगी करोगे? कल हमजा शहबाज को किक आउट किया गया है, उठाकर बैर फेंका गया और पाकिस्तान से चंद दर्जन लोग इस्लामाबाद में वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म वो निकले हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा बाहर नहीं निकला। तो आपको तो आवाम खुशियां मना रही है कि करप्ट टोला इंपोर्टेड हुकूमत अपने अंजाम को पहुंच रही है और आप इतनी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो लीगी सहाफ़ी का रोना मैं आपके सामने रख दूं। अगरचे जब से ये रजीम चेंज हुई है इसके अंदर एक नून लीग के जो सहाफ़ी हैं और वो हैं नुसरत जावेद, उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से वापस लाने का मंसूबा है, ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये नून लीग ट्रैप हो गई है। लेकिन वो कहते रहे, सुनी नहीं किसी ने। अब ये जो तलत हुसैन है इसकी मैं बूंगियां आपके सामने रखता हूं। ये बेचारे कितने चीखो पुकार के अंदर ये इस वक्त हैं। वो कहता है, तलत हुसैन कहता है, वादे हुआ कि परवेज इलाही ने बुजदार के बाद आखिरी वक्त पर नून और इत्तेहादियों की मदद से वजीर आला बनने से फरार क्यों इख्तियार किया? हैं जी, क्यों किया? यानी इदारों ने कहा, कुछ लोग थे जिसने उन्हें कहा। मोनस इलाही तो बहाना था। दरअसल मरकज और पंजाब में नून लीग को मरकजियत देकर निजाम को अगले साल तक चलाना मकसूद ही नहीं था। रोजे अव्वल से मकसद जल्द इंतखाबात ही था। ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा मुनसफीन की फुर्तियां वगैरह सब इस तयशुदा अंजाम की कड़ियां थी। यानी जो कुछ हो रहा है ये तयशुदा है, ये नून लीग सहाफ़ी कह रहे हैं। नया आर्मी चीफ हो या मईशत को संभालने का क्रेडिट, सब कुछ एक न्यूट्रल निजाम से करवाना था। सादा अल्फाज में नून के साथ एक मुफस्सल हाथ हो गया है। ये कौन कह रहा है? नून लीग का एक आम कारिंदा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और अपने आप को सहाफ़ी कहता है। वो कह रहा है ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा मुनसफीन की फुर्तियां वगैरह सब इस तयशुदा अंजाम की कड़ियां थी। नया आर्मी चीफ हो या मईशत को संभालने का क्रेडिट, सब कुछ एक न्यूट्रल निजाम से करवाना था। सादा अल्फाज में नून के साथ एक मुफस्सल बड़ा हाथ हो गया है। इमरान खान की लॉन्ड्रिंग और री लॉन्चिंग भी हुई है और जबरदस्त लगाम भी डल गई है। नून लीग को सर कमाल कर दिया है, तालियां। अब ये पूरा जो टोला है ये आवाज बख्श में समझ नहीं आ रही हो हमारे साथ क्या गया है। चूंकि केसेस माफ करवाने का लालच था, होशो आवाज नहीं थे, लेकिन जो रद्द अमल आया, जो मिस कैलकुलेशन हुई, उसने पूरा माहौल को बदल दिया है। और अब इमरान खान के हाथ में सारा ट्रंप के कार्ड हैं। जब चाहेंगे, अगर खुद ये असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करते, इस्तीफे नहीं देते, तो अब केपीके और पंजाब में अपनी हुकूमत है। और अब लाखों लोग जब इस्लामाबाद में आएंगे तो तिनके की तरह, वो फजल रहमान कहते हैं ना, तिनके की तरह, तो तिनके की तरह ये इंपोर्टेड हुकूमत खत्म हो जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।